Hello students, today we are going to learn about your third lesson of your English grammar, that is called singular and plural. What is our third lesson? Singular and plural. So let us see what is meant by singular and what is meant by plural. So you can see here first line, singular means one, just one. It means when you see one thing, when you see one place or one person, that is called singular form of that thing. Okay, it means singular means just once. And what is meant by plural? Plural means more than one. It means when you see the more than one pictures, any another picture, more than one thing, more than one person, that time we call as plural form of that thing. Okay, so more for your information explanation, you can see here all the pictures. Which are these pictures? Yes, this is a duck. These all are ducks. But see, those three pictures, there are some different. What is that? Yes, in first picture you see the one duck. In first picture you see just one duck. In second picture you see the two ducks are there. And in third picture you see three ducks are there, 1, 2 and 3. It means first picture one duck, in second picture there are two ducks, and in third picture you can see here three ducks. What is the difference between those pictures? Let us see. My dear students, इस लेसन में हम देख रहे हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं. व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर? तो सिंगुलर मीन्स, सिंगुलर इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक चीज़ हम जब भी देखते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग हो, जब एक ही देखते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म. इट मीन्स जस्ट वंस, सिर्फ एक बत्तख हो, एक पेन हो, एक पेंसिल हो, एक पर्सन हो, आपका एक फ्रेंड हो, ऐसे किसी भी सिर्फ एक को जब हम देखते हैं तो उसी को बोलते हैं हम सिंगुलर फॉर्म. ओके. और व्हाट इज मीन बाय प्लूरल फॉर्म? इट मीन्स जब भी हम एक से भी ज़्यादा कुछ चीज़ों को देखते हैं तो उस टाइम हम उसको प्लूरल फॉर्म्स बोलते हैं. इट मीन्स हाउ दैट, देखो अभी यहाँ पे आपको 2 डग्स दिए हैं या फिर 3 डग्स दिए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फॉर्म बोलते हैं. इसी तरह से अभी देखो आपके सामने मैंने एक पेन रखा. यहाँ पे क्या है? आपके सामने एक पेन है. व्हाट इज़ इट कॉल्ड? It is called just one pen. Okay, if we added some of those pens here, look at this. Now it is called not pen, it is called as pens. It means here you can see one pen and here you can see more pens, more than one pens. It means जब भी हम किसी एक चीज़ को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म. इट मीन्स दिस इज़ अ वन पेन, जस्ट वन. ओके. Singular means what? Singular means one. So this is just one pen. And when we see more than one pens, it means so many pens. That time we called as plural form of that word. Okay. अभी ये चीज़ें, ये पेन्स जो है, ये क्या एक पेन है? क्या नहीं. यहाँ पे बहुत सारे पेन मैंने रखे हैं तो इसको बोलेंगे हम प्लूरल फॉर्म. और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पेन रखा है तो इसको बोलेंगे हम सिंगुलर फॉर्म. ओके. होप्स यू अंडरस्टैंड. When we see the one thing, that is called singular form of that thing, and when we see more than one thing, that is called plural form of that thing. Okay students, now here we see the word balloon is singular. The word, कौन सा word? balloon. इस balloon word को हम क्या बोलेंगे? singular form. Okay. And the word balloons is plural. balloons है यहाँ पे. इट मीन्स वॉट? यहाँ पे आपको क्या एडिशनल दिखाई दे रहा है स्पेलिंग्स में? यहाँ पे बलून की स्पेलिंग है, यहाँ पे भी बलून की ही है, पर इसके आगे हमने क्या किया है? यस ऐड किया है. लुक एट सी हियर. हियर वी सी जस्ट बलून. इट मीन्स जस्ट वन बलून, नॉट मोर देन वन. ओके. हियर वी सी जस्ट वन बलून, सो इट इज़ कॉल्ड बलून इज अ सिंगुलर फॉर्म. एंड हियर वी कैन सी बलून्स. इट मीन्स मोर देन वन. So many balloons are there. That is called, here we see balloons and this word is called plural form. Okay. Let us see these all the rules making of that singular form into plural form. Okay. So let us see here. This is our first rule. Now let us see what is our first rule. Most singular names take yes to form the plural. It means
बहुत सारे ऐसे नाउन्स है, कुछ नेम्स है जिसको हम उस नेम्स के आगे यस ये वाला लेटर ऐड करके उसका सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं. ओके, नाउ लुक एट these pictures. You can see here which are these pictures. This is called cock. Okay, so here you can see two pictures. यहाँ पे आप दो साइड में दो पिक्चर्स देख रहे हैं. इन फर्स्ट साइड यू कैन सी जस्ट वन कॉक. यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कॉक दिखाई दे रहा है. और अनदर साइड यू कैन सी हियर more than one cocks. It means here we see two cocks. When we see one, that time we say it just cock, and when we see more than one, that time we say cocks. Okay, so students, ये जो हमारा फर्स्ट रूल है, मोस्ट सिंगुलर नेम्स टेक यस टू फॉर्म द प्लूरल. इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी नाम जब आपके सामने आता है, कोई भी नाउन्स जब आपके सामने आता है, तो उस नाउन को हमें सिंगुलर का फॉर्म प्लूरल बनाने के लिए उसको इसके आगे सिर्फ यस ऐड करना पड़ता है. सेम लाइक दिस. यहाँ पे देखो, अभी इस साइड में हमने कॉक लिखा है और इस साइड में क्या दिख रहे हैं हम, कॉक्स. इस कॉक को हमने उसके आगे यस ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाया है. सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज़. यहाँ पे अभी एक ही कॉक है इसलिए हम इसे कॉक बोलते हैं. और जब हम एक कॉक से भी ज़्यादा कॉक देखते हैं, ओके, यहाँ पे बहुत सारे कॉक है, इट मीन्स दो कॉक है. जब भी एक से ज़्यादा कॉक दिखेंगे तो उसको हम कॉक्स मतलब यस लगा के उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं. ओके, सेम लाइक दिस. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ हेन से. ओके, इन लेफ्ट साइड हियर यू हैव गिवन हेन. इट मीन्स हियर यहाँ पे एक ही हेन है इसलिए यहाँ पे हेन लिखा है. और यहाँ पे एक से ज़्यादा है मतलब दो है तो यहाँ पे हेन्स बोलते हैं. इट मीन्स हेन, हेन्स. हेन इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड हेन्स इज अ प्लूरल फॉर्म. सेम लाइक दिस. हियर वन एग, so it is called egg. And here you have seen the 3 eggs. It means eggs. Okay, eggs. In those pictures you can see left side this is a singular form of that thing, and right side this is a plural form of that things. Cock singular, cocks plural. Hen singular, hens plural. Egg singular, eggs plural. It means singular means just one and plural means more than one. Okay, singular, plural. Singular just one, only one thing, and plural means more than one thing. Now let us see on the next page. Here also you have given boy, just one boy. Here boys, more than one boys. One boy you can see here, and here more than one boys, so it is called boys by adding yes. Okay, let us see here. Girl, girls. One girls, more than one girls. Okay, one girl and girls. Let us see here. Book. There is only one book, so it is called book. And more than one books, so it is called books. Okay, by adding this yes article, letter, sorry. Now let us see here some other examples for your practice. Okay, and in those all the examples you have to write it in your notebook. Okay, so which are they? Let us see. In left side you have given singular form of that words, and in those words you have to add just yes and make it plural forms as our first rule. Okay, so let us see. Ant, ants. Okay, ball, balls. Bat, bats. Boat, boats. Cat, cats. Cock, cocks. Day, days. Desk, desks. Dog, dogs. In this way, also right side you have given some of the more examples, and here you have also add just yes of that word, ending word, and you have to make this singular form into plural forms. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको सॉल्व करना है. जो हमारा पहला रूल बताता है कि ऐसे वाले कुछ नाउन्स है जो उस नाउन्स के आगे हमें यस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं सिंगुलर फॉर्म के. एंट मीन्स वन एंट, यानी उसको अभी हम प्लूरल फॉर्म कैसे बनाना है, उस एंट के आगे सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, यस ऐड करना है. और ये यस ऐड करके उसका जो नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म का वो आपको यहाँ पे लिखना है. सेम लाइक दिस. ओके, नाउ लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. नेम्स एंडिंग in O, X, SS, CH and SH take ES to form the plural. Okay, to form the plural.
It means this is our second rule. This is our second rule that make the singular form into plural form. So what is this second rule? यहाँ पे आपको बताया है कि ऐसे कुछ नाउन्स आएंगे, ऐसे कुछ नेम्स आएंगे जिसका एंडिंग होगा ओ से, एक्स से, डबल एस से, सी एच से या फिर एस एच से. यहाँ पे जो आपको लेटर्स दिए हैं उन लेटर्स से अगर उस नेम का एंडिंग होता है तो उस टाइम उस नेम्स को आपको प्लूरल फॉर्म कैसे बनाना है, उसके आगे ई एस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. ओके, लेट अस सी द एग्जांपल. यहाँ पे देखो, अभी वन साइड में एक बॉक्स दिया है और अनदर साइड में आपको दूसरी साइड में मोर देन वन बॉक्स, इट मीन्स 3 बॉक्स दिए हैं. तो यहाँ पे देखो, अभी ये बॉक्स की स्पेलिंग क्या है, BOX बॉक्स. सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वर्ड है उस वर्ड का लास्ट एंडिंग जो वर्ड है, एंडिंग लेटर जो है वो क्या है, एक्स है. अब जब भी ऐसे वर्ड्स के टाइम में जब भी उस वर्ड का एंडिंग एक्स से होता है तो उस टाइम उस वर्ड के आगे आपको क्या ऐड करना है, ES ऐड करना है. एक्स के आगे BOXES. किस लिए? क्योंकि हमें इस सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म बनाना है, एक से अनेक बनाना है. ओके, जब भी हमें किसी भी चीज़ को एक से अनेक बनाना पड़ता है तो उस टाइम ये जो हमारा सेकेंड वाला रूल है, कौन सा, BOX बॉक्स. यहाँ पे किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड्स का एंडिंग, किसी भी वर्ड्स का लास्ट लेटर जो होता है वो अगर इसमें से कोई आता है, OX, SSS, CH या फिर SH, तो उस टाइम उस वाले वर्ड्स के आगे ES ऐड करके उसका सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म बनाना है. इट मीन्स सी द मोर एग्जाम्पल्स हियर. DISH डिश. अभी यहाँ पे भी क्या हो गया है, इस वर्ड का जो एंडिंग है वो एंडिंग लेटर कौन सा आया है, SH. इट मीन्स हियर वी सी SH ऑल्सो हियर, DISH डिश. तो इस वर्ड्स के आगे हमें क्या ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, ES, DISHES डिशेश, डिश, डिशेश, इस तरह से. ओके, लेट अस सी हियर मैंगो. Here we see just one mango, so it is called mango. But in this word, last ending letter we see here O. And when we see this type of letter O, X, SSS, CH and SH by the ending of that word, that time we use just ES of that word and make it plural form. So mango, mangoes. MANGOES mangoes. इस तरह से उसको ES ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना है. Okay, hopes you understand of our second rule of the making singular into plural form. Now here you have given some of the exercise, some more examples to practice yourself. Okay, singular form of that second rule, and you have to just make it plural forms by adding just ES of those words. Okay, so fox, foxes, bus, buses, hero, heroes, class, classes, brush, brushes, watch, watches, potato, potatoes, tomato, tomatoes. In this way also you have to write these all words singular into plural form. यहाँ पे आपको जो सेकंड रूल बताया है कि किसी भी वर्ड्स का जो लास्ट एंडिंग वर्ड लेटर होता है वो अगर यक्स होता है, यस होता है, ओ होता है या फिर डबल यस, SH, CH, इस तरह से लेटर्स का एंडिंग आता है, वर्ड्स का एंडिंग आता है, तो उस वाले वर्ड्स के आगे हमें ES ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना पड़ता है. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल एग्जाम्पल्स एट योर होम एंड इन योर नोटबुक. ओके, now let us see the third rule. This is our third rule. Which are they? Names ending in a consonant plus Y. Take IES in place of Y to form the plural. अभी इस थर्ड रूल में आपको क्या बताया है कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिसका एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस Y से होता है. हाउ? लुक एट हियर, FLY. यहाँ पे इसका एंडिंग Y लेटर से हुआ है और उसके पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट लेटर है, L. दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट लेटर. इट मीन्स किसी भी वर्ड्स का जब कॉन्सोनेंट प्लस Y इस तरह से एंडिंग होता है तो उस टाइम उस वर्ड को हमें सिंगुलर का प्लूरल किस तरह से बनाना है, IES यूज़ करके. किसकी जगह पे, Y की जगह पे. इट मीन्स हमें इस लेटर्स में Y को ड्रॉप करना पड़ता है और Y की जगह हम क्या ऐड करेंगे, IES. सेम लाइक दिस, FLY फ्लाई एंड FLIES फ्लाइज. एक से अनेक बनाने के लिए ये जो हमारा थर्ड रूल है उसमें बोला है कि
किसी भी वर्ड्स में लास्ट में जो एंडिंग आता है तो वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा। तो उस टाइम उस वाई को हमें ड्रॉप करना है, उस वाई को हमें निकाल देना है और उस वाई की जगह पे आई ई एस ये वाले वर्ड्स उसमें ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल्स। FLY फ्लाई, FLIES फ्लाइज, नेक्स्ट CITY सिटी एंड CITIES सिटीज़। मतलब हर एक वर्ड्स में हमने जो लास्ट में वाई आता है उसको ड्रॉप किया है, उसको निकाला है और उसकी जगह पे IES ऐड किया है। लेट अस सी मोर एग्जांपल्स। लेडी, लेडीज, कॉपी, कॉपीज, हियर, बॉडी, बॉडीज, बेबी, babies, story, stories, army, armies, like this. Okay, it means when we see the consonant plus y ending names, that time we drop the y letter and add IES to make its plural form. Okay, now let us see the fourth rule. Some names ending in F or FE, some names ending in F or FE take VES in place of F or FE to form the plural. It means कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिसका एंडिंग यफ से होता है या फिर यफ ई से होता है। तो जब इस वाले वर्ड्स हम देखेंगे कि जिसका एंडिंग यफ से या फिर यफ ई से होगा तो उस टाइम उस वर्ड को प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसकी जगह पे हमें VES यूज़ करना है। कौन से लेटर्स की जगह पे? यफ या फिर यफ ई की जगह पे हमें VES ऐड करके उस वर्ड का सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म बनाना है। सो लेट अस सी द एग्जांपल। LEAF लिव, यहाँ पे आपको उसका प्लूरल फॉर्म्स दिया है LEAVES। इट मीन्स यहाँ पे अभी ये जो वर्ड्स दिए हैं उसका एंडिंग यफ से हुआ है, राइट, यफ से हुआ है एंड यफ ई से, यफ या फिर यफ ही से उसका एंडिंग अगर उस वर्ड का होता है तो उस टाइम उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इस यफ को या फिर इस एफ ही को निकालना पड़ता है। उसको हटा के उसकी जगह पे क्या यूज़ करना है? VES। ओके, क्या यूज़ करना है? VES लेटर। इट मीन्स LEAF लिव, LEAVES लिव्स, CALF काफ, CAVES काफ्स, WIFE वाइफ, WIVES wives. Okay, in this way you have to just drop this F letter or FE letter and you have to add VES among instead of this F or FE letter. Okay, किसी भी लेटर्स में जब एंडिंग किसी भी वर्ड्स का एंडिंग यफ या फिर एफ ई से होता है तो उसकी जगह पे उस लेटर्स को हटा के VES ऐड करके उसका सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट रूल। सम नेम्स चेंज द इनसाइड वॉवेल्स टू फॉर्म द प्लूरल। दिस इज़ अवर फिफ्थ रूल एंड व्हाट इज़ दैट? कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नेम्स ऐसे हैं जिसका वॉवेल्स लेटर्स जो उसके बीच में आते हैं उसको चेंज करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। इट मीन्स हाउ? लेट अस सी द एग्जांपल। फुट, FOOT फुट। अभी यहाँ पे हम कौन से वॉवेल्स लेटर देख रहे हैं? OO, these are the vowels letter and when we see this type of word and it words we will make its plural form by changing this vowel letter. How? फुट का क्या होता है यहाँ पे? फिट होता है। फुट, फिट। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ फिट? FEET फिट। ओके, इन दिस वे फुट, फिट। मैन, मेन। टूथ, टीथ। ओके, टूथ, टीथ। गूज, गिज। माउस, माइस। वुमन, वुमेन। इट मीन्स कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं कि उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसके अंदर जो वॉवेल्स लेटर होते हैं उस वॉवेल्स लेटर्स को चेंज करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। सेम लाइक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। नाउ लेट अस सी द लास्ट रूल ऑफ सिक्स्थ रूल। सम नेम्स टेक EN आफ्टर देम। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उस नाउन्स के आगे सिर्फ हमें EN ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑक्स, ऑक्स का ऑक्सन होता है, मतलब उसके आगे सिर्फ EN ऐड किया हमने। ऑक्स, ऑक्सन। इट मीन्स चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो इसमें भी हमने क्या किया है? REN। ये वाला जो EN लेटर है वो EN लेटर उस वर्ड्स के आगे ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म बनाया है। होप्स यू अंडरस्टैंड दिस ऑल रूल्स फॉर मेकिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको यहाँ पे जितने भी सारे एग्जांपल्स आपने लिखे हैं
वो सारे एग्जाम्पल इस टेक्स्ट बुक को भी सॉल्व करना है और ये आपके नोटबुक में भी ऐड करके आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ लेट अस वी शैल स्टॉप हियर. बाय.